नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल मेरठ से दिल्ली को जोड़ने वाली जो रैपिड रेल मेट्रो है, उसमें जिस तरीके से केजरीवाल ने पैसा नहीं दिया है, उसको लेकर ये फटकार जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई है, जिसके बाद अब बीजेपी को अरविंद केजरीवाल सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि केजरीवाल अपना चेहरा चमकाने पर पैसा खर्च कर रहे हैं, यानी विज्ञापन पर करोड़ों रुपए लुटाए जा रहे हैं, लेकिन जो विकास कार्य हैं उस पर पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर अब बीजेपी की जो प्रदेश सचिव हैं बासुरी स्वराज से लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के वीरेंद्र सचदेवा और साथ ही बीजेपी दिल्ली के कई नेताओं ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है। आपको मैं ये बता दूं कि बासुरी स्वराज ने एएनआई से बातचीत की है और उसमें ये कहा है कि दरअसल जिस तरीके से जुलाई में ही सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार से ये कहा था कि आरआरटीएस में वो पैसा जो उन्हें देना है वो डालें, लेकिन उस पर भी कोई गौर नहीं किया गया और उसके बाद अब ये फटकार जो है सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को लगाई है और ये कहा है कि दरअसल या तो आरआरटीएस में वो फंड डालें जो उन्हें पैसा देना है वो डालें, या उनका जो बजट विज्ञापन का है वो फ्रीज कर दिया जाएगा। इसको लेकर बासुरी स्वराज ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। It is so unfortunate that the elected Kejriwal government of Delhi refuses to do any work. And it is the Honorable Supreme Court of India that has to haul them up again and again so they actually go ahead and do their duty. The RRTS project is extremely crucial for Delhi, not only in reducing the vehicular traffic, but also in reducing pollution in Delhi. In fact, on the 24th of July 2023, this Honorable Supreme Court had even observed in their order, they had made the Kejriwal government produce an affidavit and asked details for how much is their advertisement budget. 1100 crore rupees is what the Kejriwal government has spent in the last 3 financial years on mere advertisement. In fact, in the current financial year, 550 crore rupees is what they have allocated and budgeted for advertisement. But 451 crore rupees that they need to contribute to RRTS project, they refuse to do so. And therefore, the Supreme Court had to haul them up and had to direct that if you do not bring the money and contribute that you need to do in this particular project within a week, then the money that the Kejriwal government has allocated for advertising will be transferred towards this particular project. It is appalling. It is saddening, it is heart-wrenching that the Kejriwal government is only involved in corruption and is involved in actually tooting its own horn through advertisement, but refuses to contribute or work towards the benefit of the people of this country, especially of Delhi. As I said, I stand by my stand that the Kejriwal government refuses to work, and it is extremely heart-wrenching that an elected AAP government refuses to work until and unless the Supreme Court holds it up or directs it to do its job. Even the pollution in Delhi, it's such a travesty. The situation is such a travesty. Mr. Kejriwal had taken a guarantee and given a guarantee to the people that once his party is elected to power in Punjab, then the Parali burning incidents will be controlled. Nothing has happened. From November 22, now just see, the Kejriwal government has been in power for almost 9 years in Delhi. For over 1.5 years in Punjab, nothing has happened. In fact, 68 lakh rupees were spent on procuring a biodecomposer and 23 crore rupees were actually spent on advertisement of that particular product. So once again, the Supreme Court has to intervene. Whatever steps the Kejriwal government was forced to take has only and only happened because the Supreme Court has intervened. The Kejriwal government will keep coming up with these unscientific, gimmicky schemes such as the odd and even, which even the Supreme Court of India said is nothing but merely optics. The BJP demands that
Kejriwal government should start doing its job and start working for the people of Delhi and for the people of Punjab, and they should actually stop spending all their valuable time and all the money only in corruption and on their own advertisement and sort of tooting their own horn. The judicial custody being extended is a procedural thing that ought to have happened any which way. Mr. Sisodia's bail has been rejected 6 times by the courts of this land, 3 times in ED cases, 3 times in CBI cases. In fact, the investigating agencies have placed very cogent material before the courts of this country, where all courts, whether it's trial court or high court or the Honorable Supreme Court of India, have found prima facie evidence to prosecute Mr. Sisodia and other leaders of the Aam Aadmi Party in this particular liquor scam. It is, as I said, very saddening to see 90 to about 100 crore rupees in kickbacks were routed through agents of the Aam Aadmi Party or as well as members of the Aam Aadmi Party. This is a scam with very grave and serious allegations. It needs to be investigated, and the people of Delhi deserve justice, and therefore the involved individuals who happen to be the leaders of the Aam Aadmi Party need to be prosecuted. वहीं दिल्ली बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उनकी तरफ से भी बाकायदा एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसपे उन्होंने केजरीवाल सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार के विज्ञापन बजट को तुरंत आरआरटीएस फंड में ट्रांसफर करने की बात कही है और कड़ी फटकार लगाई है। दिल्ली के विकास के लिए इसलिए आप पैसा खर्च नहीं कर रही है, लेकिन आप चेहरा चमकाने के लिए आपके पास पैसा है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि दरअसल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी कर रही है, दिल्ली की जनता की उनको कोई चिंता नहीं है और अब जनता जान चुकी है कि आप उनको लूट रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं और धोखा कर रहे हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जनता के सामने केजरीवाल का असली चेहरा वीरेंद्र सचदेवा की ओर से बेनकाब किया गया है। इसके अलावा मनोज तिवारी से लेकर प्रवेश साहिब सिंह जैसे नेताओं की ओर से भी दरअसल अरविंद केजरीवाल उनकी सरकार की आलोचना की गई है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट बार बार ये चेतावनी दे रहा है कि आरआरटीएस में फंड जो है वो दिल्ली सरकार डाले, जो उनको पैसा देना है वो उनकी तरफ से दिया जाए, लेकिन इस पर कोई गौर नहीं किया जा रहा है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार को जिस प्रकार से लताड़ा है वो एक और बानगी बन गई है कि ये सरकार किस प्रकार से डेवलपमेंट की शत्रु है और कैसे माननीय न्यायालय तक कड़े से कड़ा टिप्पणी करने से अपने को रोक नहीं रहे हैं। और आज तो जो बातें कही गई कि अगर आरआरटीएस के लिए, रैपिड रेल के लिए आप पैसे नहीं देते हैं तो आपका जो विज्ञापन का पैसा है उसको सीज किया जाएगा और उसको रैपिड रेल के लिए ट्रांसफर किया जाएगा। इतनी कड़ी टिप्पणी के बाद अगर कोई नैतिक रूप से चल रही सरकार होगी तो उसको अपने ऊपर शर्म आएगी, लेकिन ये तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है। मगर दिल्ली देख रही है कि दिल्ली के इमेज को कैसा बना दिया है अरविंद केजरीवाल जी ने। मेरा मानना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर सत्ता में आने के बाद भी आम जन के लिए उपयोगी किसी योजना को रोकने का या फंड न देने का काम करे कोई सरकार, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अगर उस ऐसी सरकार को लीगली बर्खास्त करने की भी बात हो तो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के कड़ी टिप्पणी ने यह दिखा भी दिया है दिल्ली की परेशान जनता को कब राहत मिलेगी, दिल्ली के लोगों को दिल्ली के विस्तार के लिए जो योजनाएं हैं उसको कब मंजूरियां मिलेंगी,
ये सारा कुछ आज दिल्ली की आम जनता भी सोच। जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना जो है वो लगातार की जा रही है और इस तरीके से अब ये अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पूरे मामले में सख्त रुख अपनाया है और ये साफ तौर पर कहा है कि अगर आप इसमें पैसा नहीं देते हैं जो आपको देना है, उसके बाद आपका जो विज्ञापन का बजट है वो फ्रीज कर लिया जाएगा। एक हफ्ते का वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से केजरीवाल सरकार को अब दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई इस मामले में की है उसमें यह कहा है कि विज्ञापन पर 3 सालों का बजट आपका 1100 करोड़ रुपए है, यानी आप चेहरा चमकाने पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर आप विकास कार्यों में पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं और इसका बजट 550 करोड़ रुपया सिर्फ 1 साल का है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली सरकार को जो 415 करोड़ रुपए देने हैं वो आप नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार ये 415 करोड़ रुपए 1 सप्ताह में रिलीज करें, अगर नहीं करती है तो उसके प्रचार बजट का पैसा हम इस प्रोजेक्ट के लिए ट्रांसफर कर देंगे, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। जिसके बाद बीजेपी अब इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल सरकार पर काफी ज्यादा हमलावर नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब